اب اللہ کے رسول کی آخری بیوی کی سیرت ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کون ہیں؟ ان کا اصل نام تھا برہ بنت حارث ابن حزن۔ ان کا تعلق تھا قبیلے قیس بن اعلان سے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں، مگر ان کی رشتہ داریاں، ان کی بہنوں کی رشتہ داریاں بہت بڑے بڑے گھرانوں میں تھی۔ چنانچہ ان کی چار سگی بہنیں بڑے معزز خاندانوں میں بھی آئی گئی تھی۔ ان کی سب سے بڑی بہن تھی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کی بیوی تھی۔ یعنی ان کی بڑی بہن اللہ کے رسول کی چچی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساڑو یعنی ان کے بہنوں ہی لگتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سالی لگتی تھی۔ ان کی دوسری بہن تھی حضرت لبابہ الصغریٰ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ خالد بن ولید کی والدہ حضرت میمونہ کی بہن تھی۔ گویا حضرت میمونہ دو بڑے بڑے صحابیوں کی خالہ تھی، عبداللہ ابن عباس کی بھی خالہ تھی اور حضرت خالد بن ولید کی بھی خالہ تھی۔ ان کی تیسری بہن تھی حضرت اسماء، ان کا نکاح ہوا تھا ابی بن خلف، جو بہت بڑا سردار تھا اور جنگ احد میں مارا گیا تھا۔ اور چوتھی ان کی بہن تھی حفیدہ، ان کا نکاح ہوا تھا عبداللہ ابن مالک ہلالی کے ساتھ۔ تو یہ تو چار سگی بہنیں تھیں، اور ان کی چار وہ بہنیں تھیں جو ماں شریک تھیں، یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے۔ اس میں سے ایک حضرت اسماء بنت امیس تھی، جو پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، بعد میں حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئی، پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی، اور انہی کے بیٹے تھے محمد بن ابی بکر۔ ان کی ایک دوسری سوتیلی بہن تھی، یعنی ماں ایک تھی باپ الگ تھے، سلمہ بنت امیس، جو حضرت حمزہ کی بیوی تھی۔ اور ان کی تیسری بہن تھی سلامہ بنت امیس، ان کی شادی عبداللہ بن مالک سے ہوئی تھی۔ اور ان کی چوتھی سوتیلی بہن تھی حضرت زینب بنت خزیمہ، جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، اور جن کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے 1400 صحابہ کو لے کر کے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مشرکین نے آپ کو روک دیا، کہا ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو مکہ جانے نہیں دیں گے۔ بہرحال وہاں پر مشرکین کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک صلح ہوئی، جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس صلح کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئیں گے، اور اگلے سال جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، احرام کی حالت میں آئیں گے، عمرہ کریں گے، اور 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے، 3 دن کے اندر مکہ خالی کر دیں گے۔ چنانچہ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ اس عمرہ کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ یہ بھی عجیب منظر تھا مکے کا۔ مکے میں ہر طرف مشرکین ہیں، اور اللہ کے نبی 1400 صحابہ کرام کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ والے دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کی عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو 6 سال پہلے ہم نے بے یار و مددگار اس مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور آج کس شان سے اللہ اکبر اور لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کا یہ نبی اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا۔ اس منظر کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دیکھ رہی تھی، جو ایک بیوہ عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ عورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمرہ کر لیا، احرام آپ نے اتار لیا، آپ کے چچا عباس آپ کے پاس آئے، اور اپنی سالی اور اپنی یعنی بھتیجی بھی لگتی تھی اور سالی بھی لگتی تھی، حضرت میمونہ بنت حارث کا رشتہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سالی کو اپنے عقد میں لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا یہ رشتہ منظور کیا، اور حضرت میمونہ کے ساتھ آپ کا نکاح 400 درہم پر طے ہوا، لیکن رخصتی اس وقت نہیں ہوئی۔ اس وقت حضرت میمونہ کی عمر تقریباً 27 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے اندر وہاں سے واپس آنے لگے، تو آپ نے حضرت ابو رافع جو آپ کے غلام تھے ان کو کہا کہ آپ میمونہ کو لے کر کے آئیں۔ واپسی میں ایک جگہ تھی صرف نام کی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی صرف، وہاں پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، وہیں پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کو لے کر کے گئے، اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ کی رسم عروسی ادا کی گئی۔ جب اللہ کے رسول وہاں مقام صرف سے جب جانے لگے، تو حضرت میمونہ نے وصیت بھی کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ اسی جگہ مجھے دفنایا جائے۔
चुनांचे जब हजरत मैमूना का इंतकाल होता है सन 61 हिजरी में यजीद के दौर में, तो उनकी वसीयत के मुताबिक मदीना से उनका जनाजा शरीफ में लेके जाया गया और वहीं उनको दफनाया गया। हजरत मैमूना अल्लाह के रसूल की आखिरी बीवी है, ये भी उनके लिए एक शरफ की बात है। उनके निकाह में आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और बीवी से निकाह नहीं किया। अल्लाह के रसूल अपनी तमाम बीवियों को जो सालाना खर्चा देते थे, 80 वस्क खजूर और 20 वस्क जौ, ये हर बीवी को साल का मिलता था, वही हजरत मैमूना के लिए भी अदा किया गया। हज्जतुल विदा के मौके पर हजरत मैमूना भी अल्लाह के रसूल के साथ थी। इन्होंने अल्लाह के रसूल से तकरीबन 12 हदीसें रिवायत की हैं, जिसमें बड़ी अहम हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल के गुस्ल का तरीका, अल्लाह के रसूल के गुस्ल का तरीका भी हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया है। इसी तरीके से औरतों के पास प्राइवेट मसाइल होते हैं जिसको लोग बयान करने से और पूछने से शर्माते हैं। हजरत मैमूना ने मौका पड़ने पर उनको भी बयान किया। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो इनके भांजे लगते थे, ये उनकी खाला थी, वो आए तो हजरत मैमूना ने देखा उनके बाल बिल्कुल परागंदा है, चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो हजरत मैमूना ने पूछा कि भांजे क्या बात है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है, तुम्हारे बाल क्यों मैले कुचले हैं? कहा कि मेरी बीवी अय्याम में है, मेरी बीवी अपने खास दिनों में है और मेरे बालों में कंघी वही करती है। अब चूंकि इन अय्याम में तो वो मुझे हाथ नहीं लगा सकती, वो नापाक है, इसलिए मैं इस हाल में हूं। तो हजरत मैमूना ने कहा कि अल्लाह के बंदे, औरत अपने उन अय्याम में नापाक है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो तुझे छू नहीं सकती है, वो तुझे कंघी नहीं कर सकती है। वो नापाक है, नमाज नहीं पढ़ सकती है, वो रोजा नहीं रख सकती है, बाकी उसके साथ उठना बैठना सोना जागना और तेरी खिदमत करना और तेरा उसकी खिदमत करना, ये सारी चीजें जायज हैं। तो इस तरीके से हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो मसाइल जिस पर लोग बात नहीं करते थे, जहां रहनुमाई की जरूरत पड़ती थी, हजरत मैमूना बयान करती थी। हजरत मैमूना के बारे में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक कमेंट है, वो कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाली और सबसे ज्यादा रिश्तेदारों के साथ रिश्ता निभाने वाली, सिला रहमी करने वाली अगर कोई औरत देखा है तो वो हजरत मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल की वो 11 बीवियां हैं जो आपके निकाह में आई। वफात के वक्त आपकी 9 बीवियां आपके निकाह में थी। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह कर दिया कि नबी की ये तमाम बीवियां उम्मत की माएँ हैं, इनको माँ का दर्जा दिया जाए, माँ की तरह एहतराम किया जाए, और ये औरतें कयामत में और आखिरत में भी रसूल की बीवी बनकर के रहेंगी, जन्नत में भी रसूल की बीवी बनकर रहेंगी। इन 11 औरतों से अल्लाह के रसूल ने अलग अलग औकात में निकाह किया। इसमें हजरत सफिया जैसी खातून भी थी जो एक यहूदी सरदार की बेटी थी। नबी ने उनसे निकाह किया था ताकि यहूदियों के दिल में दुश्मनी का कुछ तो लावा कम हो, कुछ तो उन्हें एहसास हो कि उस रसूल ने हमें, हमारी बेटी उस रसूल के निकाह में है, यानी ससुराली रिश्तेदार हम हैं, कम से कम इस नाते दुश्मनी और हसद की आग कुछ बुझ जाए। इन 11 बीवियों में वो बीवी भी हैं जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया तो उनकी पूरी कौम रिहा हो गई। अभी हमने कल बयान किया था आपके सामने हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अबू सुफियान जो इस्लाम का कट्टर दुश्मन है, उनकी बेटी से अल्लाह के रसूल निकाह करते हैं और बाद में वही अबू सुफियान इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम के सच्चे सिपाही बन जाते हैं। तो हमें इस बात पर ईमान भी रखना चाहिए और ये हकीकत भी है कि ये 11 निकाह जो अल्लाह के नबी ने किए, ये अल्लाह के हुक्म से किए, अल्लाह की मशीयत के तहत किए और मसलहत के तहत किए। इसमें नऊज़ बिल्लाह इस बात का कोई दखल नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह अपने शहवानी ख्वाहिशात को सिर्फ पूरा करने के लिए आपने ये निकाह किए। इसलिए कि अगर शहवानी ख्वाहिशात का कोई मसला था तो अल्लाह के नबी ने अपनी जवानी का जो सबसे टॉप का दौर होता है, जो शबाब का दौर होता है, आपने सिर्फ एक बीवी पर इक्तिफा किया और 25 साल से लेकर के 50 साल की उम्र तक आपके निकाह में सिर्फ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाकी रही। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन 11 बीवियों के जो हालात आपके सामने बयान किए गए, इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक हम नहीं जानते थे, हमारे मालूमात में भी नहीं है, और हम इन 11 बीवियों के हालात सुनने के बाद हमें यह भी एहसास होता है कि हमारे घरों में आज दीनदारी की कितनी कमी है, आज हमारी औरतों में दीनदारी की कितनी कमी है। आज हम जो ये खबरें सुनते हैं, मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, आज
बनारस के बारे में खबरें आ रही हैं कि मुसलमान लड़कियां, नकाब पोश लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ बाइक पर टहल रही हैं, होटलों के कमरे में रंगरलियां मना रही हैं। ये हालात क्यों हैं मेरे भाइयों? इसलिए कि हमने अपनी औरतों पर दीन की तालीम और दीन सीखने के रास्ते बंद कर दिए। भाई हम बहुत खुश हुए, हमने अपनी लड़की को ग्रेजुएट करा दिया, हमारी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, ग्रेजुएट कर रही है, बीए कर रही है, एमए कर रही है, हम खुश हैं। हमारी लड़की आला तालीम हासिल कर रही है, कल रिश्ता आएगा, हम फख्र से कह सकते हैं हमारी लड़की ने एमए किया है, हमारी लड़की ने बीए किया है। हम इस पर भी फख्र करते हैं, खुश होते हैं। हमारी लड़की कोई एजुकेशन वाली तालीम हासिल नहीं कर रही है, वो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रही है, वो ऐसी जगह पढ़ रही है जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। मगर मेरे भाइयों, आप ये भूल जाते हैं, आपकी लड़की उस माहौल में पढ़ रही है जहां वो लड़कियां पढ़ती हैं जिनके मजहब और जिसके माहौल में शर्म हया का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है, जहां 10-10 बॉयफ्रेंड रखना ये फख्र की बात है, जिनका मशगला और जिनकी आदत ये कि वो रास्ते में चलती हैं तो वो अपने महबूब और अपने आशिकों से बात करते हुए गुजरती हैं। उन लड़कियों के साथ आपकी लड़की अगर पढ़ रही है, उनके साथ रोजाना 5-6 घंटे वक्त गुजार रही है और उस लड़की को दीन क्या है, इस्लाम क्या है, नमाज क्या है, आयशा की सीरत कैसी थी, उम्मे हबीबा की सीरत कैसी थी, हफ्सा की सीरत कैसी थी, ये आपने नहीं बताया, तो उस लड़की से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उस लड़की से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अगर वो लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है तो रोने का मकाम ये नहीं है, रोने का मकाम ये है कि आपने उस लड़की को दीन कितना पहुंचाया है। आज हमारी औरतें मेले में जा रही हैं, मौलवियों के माथे पे बल नहीं आते। हमारी औरतें आज मज़ारों पे जा रही हैं, मौलवियों के माथे पे बल नहीं आते। हमारी औरतें नुमाइश में जा रही हैं, मौलवियों के माथे पर बल नहीं आते। लेकिन जहां मस्जिद में औरतें पहुंच जाएं, जहां ईदगाह में औरतें पहुंच जाएं, माथे पे बल आ जाते हैं। कहा जाता नहीं साहब हम ईदगाह में जाने नहीं देंगे, फितना है, ये फितना है। बाजार फितना नहीं है, मज़ारों पे जाना फितना नहीं है, नुमाइश में जाना फितना नहीं है। सारा दुनिया का फितना कहां पैदा हो गया? मस्जिद में पैदा हो गया। दुनिया के सब छठे बदमाश कहां हैं? सब मस्जिद में बैठे हैं। शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो मौलवी जो मस्जिद को फितने का घर कहते हैं। ये अल्लाह का घर है और यहाँ जुमा का आधा घंटे का जो खुतबा होता है, जहां एक इमाम, एक मौलवी, एक आलिम दीन हफ्ते भर तैयारी करके दीन की बातें बताता है, वो बातें आप सुनते हैं, आपके घर की औरतें नहीं सुनती। आपने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। जब आपने मस्जिदों के दरवाजे अपनी औरतों के लिए बंद कर लिए तो फिर ये खबरें सुनने के लिए तैयार रहो कि फला की लड़की फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। आप मस्जिद के दरवाजे बंद करेंगे, इर्तिदाद के रास्ते आपकी बेटियों के लिए, आपकी बहनों के लिए खुल जाएंगे। मेरी बड़ी दर्दमंदाना गुजारिश है, अपनी बच्चियों की दीनी तालीम पर मेरे भाइयों थोड़ी तवज्जो दें। आप मोबाइल से नहीं बचा सकते इस दौर में अपने बच्चियों को, आप इंटरनेट से नहीं बचा सकते, आप सीरियल से अपने घर की औरतों को नहीं बचा सकते। मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता चला जा रहा है। मगर आप ये तो कर सकते हैं, ये जहर आपके घर में मौजूद है, जहर का तिरियाक तो आप दे सकते हैं, जहर का इलाज तो आप दे सकते हैं। आप उनको आयशा की सीरत पढ़ के सुनाएं, उन्हें खदीजा की जिंदगी पढ़ के बताएं, अपने घर में ऐसी किताबें ला के रखें, अपने घर में ऐसे स्पीकर ला के रख दें, घर में रोजाना एक ऐसी तकरीर घर में औरतें सुन लें जिसमें दीन की बातें वो सुन लें। अगर ये माहौल आपने बना दिया तो उसका असर आज नहीं 10 साल बाद आप महसूस करेंगे मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें और हमारी माँ बहनों को इन अज़वाज मुत्तहरात की, इन मुक़द्दस ख़वातीन की, इन उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगियों को समझने और इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को हजरत आयशा, हजरत सफिया, हजरत उम्मे हबीबा और रसूल की इन तमाम बीवियों के जैसी शर्म हया, इनके जैसा ज़ुहद व तक़वा, इनके जैसा इबादत का शौक, इनके जैसा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जज्बा, इनके जैसा अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने का जज्बा, इनके जैसा दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा अल्लाह हमारे घर की औरतों में भी पैदा फरमा दे। अल्लाह बेहयाई और बेगैरती से हमारे घरों को बचा ले। रब्बुल आलमीन हमारी आने वाली नस्लों को बेहयाई का जो तूफान आगे मुंह खोल के खड़ा है, जो बेहयाई का सांप मुंह खोल के खड़ा है, रब्बुल आलमीन उससे हमारे बच्चों को बचा ले, हमारी आने वाली नस्लों को बचा ले। रब्बुल आलमीन हमें शर्म हया और इस्लामी कदरों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम को गौर से, पाबंदी से सुना है, इस प्रोग्राम के सुनने को अल्लाह ताला उनकी नजात का जरिया बना दे। रब्बुल आलमीन हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और खात्मा हम सबका ईमान पर हो।
ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے، جس دن وہ مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے۔